Jai Hind student. So today we are going to start with the NCERT miscellaneous exercise of application of integral. Very important exercise. So we'll start with the first question. First question is having two parts. Find the area under the curve and given lines y is equal to x square, y is equal to x की power 4. So both the curves shows कौन सा parabola? Upward parabola. They shows upward parabola. So I am going to draw here first the diagram. सबसे पहले हमें डायग्राम ही बनाना है. Okay. So here this is x square equal to y. It means this part passes through the origin. So इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? Origin पे होगा. Like this. Okay. Now x is equal to 1 here. ये 1. X is equal to 2 here. Perpendicular मिला लो इसको. Like this. So we have to find this area. Okay. We have to find this area. So this is 0 0. Okay. Now write each and everything. हम हर चीज लिखते हैं. Y is equal to x square. This is the curve. So solution. Given equation of curve y is equal to x square or x square is equal to y, represent upward parabola. Okay, upward parabola. And if it represent with vertex, या having vertex 0 0 और ये किसके along घूमता है? y axis. It axis along y axis. Along y axis. Okay. Now we have to find this area. Simple है. 1 से लेके 2 तक ये इस कर्व की हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. तो कर्व का एरिया कहाँ से होगा? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. लिमिट. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 y dx. y dx मीन्स द इक्वेशन ऑफ कर्व. कहां से? 1 to 2 तक. सो हम पुट कर देते हैं. y की वैल्यू कितनी है? x square dx 1 to 2. It implies x cube upon 3 1 to 2. This is 8 upon 3 minus 1 upon 3. So area is equal to 7 by 3 square units. Clear? Now come to second part. Y is equal to x की power 4. X is equal to 1. Again this is the equation of अपवर्ड पैराबोला. ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है. सो वही सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x की पावर 4 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x की पावर 4 रिप्रेजेंट upward parabola. Okay, parabola with vertex क्या vertex होंगे इसके? 0 0 and axis along किसके? y axis के. equation of lines it is given to you. x is equal to 1, x is equal to 5 and x axis. So first of all draw the diagram. तो सेम डायग्राम बनेगा इसका जो हमने अभी यहां बनाया था. पैराबोला का डायग्राम बना दिया हमने. अपवर्ड पैराबोला का रफली डायग्राम लाइक दिस. ओके. नाउ x is equal to 1 here, x is equal to 5 here. So ये 1 और ये 5. So x is equal to 1, x is equal to 5. So ये हम
we have to find this area. Clear? X axis, y axis, okay, y dash, x dash, and x axis, यानी ये जो एरिया है, this we have to find. This one. So it's very simple. इस कर्व का एरिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. सो लिमिट बन जाएगी 1 to 5 एंड सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या, 1 to 5 y dx, इक्वेशन ऑफ कर्व. सो दैट इज इक्वल टू 1 to 5 y की वैल्यू x की पावर 4 dx. इट इम्प्लाइज x की पावर 5 upon 5, 1 to 5. क्लियर? सो 1 upon 5 बाहर, ये बना 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5. सो 1/5 को पावर 5 की पावर 5 होता है 3125 माइनस 1. सो इट इम्प्लाइज 3124 upon 5. So square units. So this is your answer. Pause the video to note down. Now come to problem 2. Find the area between the curve. This is the equation of line and this is the equation of upward parabola. So I am going to write here first what? The given equation of curve y is equal to x square represent क्या, upward parabola. Okay, so y is equal to x square. This is first. Second, y is equal to x. This is equation of line. Okay, so first of all I am going to draw a diagram. So diagram draw करते हैं. अपवर्ड पैराबोला है, इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहां पे होगा, 0 0 पे. Here we should write, हमें लिखना है कि the given equation of curve this represent upward parabola with vertex 0 0 and axis along y axis. Okay, now this is equation of parabola. Now we have to draw the line. So line बहुत easy है. x y 0 0 1 1 2 2. क्लियर? सो ये यहां से शुरू होगी 0 0 1 1 पे 2 2 पे. सो इट विल गो लाइक दिस. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. ये तो 0 0 है. वी हैव टू फाइंड दिस. सो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो दैट वी कुड कम टू नो अबाउट द लिमिट्स. हमें लिमिट्स का पता लग सके. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो. सो y इज इक्वल टू, इसको पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट. सो मैं पुट करता हूं. सो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. इसको इधर लाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज x is equal to 0, x is equal to 1. So when x is equal to 0, y is equal to 0. When x is equal to 1, y is equal to 1. So the point of intersection is 0 0 and 1 1. Okay, these are the point of intersection. It means this is 0 0 and this is 1 1. Equation of line y is equal to x. This is y is equal to x square.
सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहां से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस। सो वी हैव टू फाइंड विच एरिया, दिस एरिया। सो इट्स वेरी सिंपल, लाइन में से क्या माइनस कर दो, पैराबोला। अगर हम लाइन में से पैराबोला की कर्व माइनस कर देते हैं 0 से लेके 1 के बीच की, सो वी विल गेट द, हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दिस एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया बिटवीन किसका, लाइन, एरिया बिटवीन y is equal to x, okay, x is equal to 0, x is equal to 1 and किसका, and ये आ गया 0 आ गया एरिया and x एक्सिस, यहां तक क्लियर, माइनस एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन किसका, कर्व का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x। सो इसके ये जो एरिया होगा कर्व का, ये कौन सा होगा, नीचे वाला, 0 से 1 के बीच में नीचे वाला, कहां तक, x एक्सिस तक। तो दिस इज ओनली आई रिटन, दिस इज ऑल्सो ए वे टू राइट रिक्वायर्ड एरिया। सो सबसे पहले हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया, दैट विल रिप्रेजेंट विद a। सो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, सेम लिमिट है, पहले आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y dx, इक्वेशन ऑफ लाइन, माइनस y dx, इक्वेशन ऑफ कर्व, क्लियर। So a is equal to x minus x square, limit 0 to 1 dx. It implies x square upon 2 minus x cube upon 3. 0 to 1. 1 by 2 minus 1 by 3. Minus 0 तो कोई no need to write. LCM is equal to 6. 3 minus 2. So your area has become 1 by 6 square units. So simple. So with the help of diagram, you can find any kind of area, especially in the integrals. So pause the video to note down. Now come to problem 3. Find the area of the region lying in the, this is 3. Find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by y is equal to 4x का square, x is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 4. So here the limits is given, the equation of line is given, y is equal to 1 and y is equal to 4. So first of all we'll draw the diagram. So सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। So this is x square है, x square equal to y है, तो this is upward parabola like this, okay, roughly diagram। x is equal to 0 is here, it means this line, y is equal to 1, here y is 1, y is equal to 4 here, draw, clear। The point is 0 1, here 0, clear, okay। So this y is equal to 4, हमने ये लाइन बना दी, यहां पे y की वैल्यू क्या है, 4 है। Now this curve we have to find out the area of this curve। तो ये परपेंडिकुलर है जो ड्रॉ किए हैं हमने, ठीक है, किसके ऊपर ड्रॉ किए हैं, y एक्सिस से, नॉट x एक्सिस, कहां से, y एक्सिस। So now we have to find out this area. So हम किसके विद रिस्पेक्ट टू में निकालेंगे, y के विद रिस्पेक्ट टू में, क्योंकि लिमिट्स जो हमें गिवन है किसकी हैं, y की लिमिट्स गिवन है। So first of all I am going to write
कि ये क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला। क्या है? अपवर्ड पैराबोला हैविंग या विद वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स 0 0 एंड एक्सेस along y axis। अपवर्ड और डाउनवर्ड y एक्सिस के along होता है एंड दैट राइट एंड लेफ्ट इज अबाउट x एक्सिस। देन और क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट, x इज इक्वल टू 0 सेकेंड, y इज इक्वल टू 1 थर्ड and y is equal to 4 fourth. These four equations are given. It means we have to find out the area between 1, 2, 3, x is equal to 0 and 4. So इसका एरिया अगर y एक्सिस पे देखना है तो नीचे वाला till y axis. So limit we will put 1 to 4. So required area A is equal to 1 to 4 x dy, and this is the equation of what? This is the equation of curve यानी पैराबोला। So it implies, यहां पे लिखते हैं A is equal to 1 to 4। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारे पास आएगी y अंडर रूट अपॉन 2, so that 1 by 2। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो इट इंप्लाइज x स्क्वेयर इक्वल टू y अपॉन 4। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 2। एंड हेयर यहां से प्लस और माइनस में दो वैल्यू आएंगी, बट वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। नाउ इंटीग्रेट dy, इट इंप्लाइज हाफ 1 to 4 y की पावर 1 by 2 dy। This implies 1 to 2 y की पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 and plus 1, limit 1 to 4। Again it implies 1 by 2, ये आ गया y की पावर 3 by 2 upon 3 by 2 and 1 to 4। सो एरिया इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 by 3। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 by 2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहती है। ये 8 minus 1 7, so it implies 7 by 3 square units is your area for this given conditions। Pause the video to note down। Now come to problem 4। It's a very important problem। Sketch the graph y is equal to modulus of x plus 3। So you know कि modulus will give you two value, one in positive, one in negative। So मैं पहले ही यहां लिख लेता हूं कि y is equal to modulus of x plus 3 and it will give us two value, one नेगेटिव वैल्यू, वन पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू कब देगा? व्हेन x इज लेस देन -3। इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं तो -3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो दीज टू वैल्यू इज देयर, दीज टू फंक्शंस आर देयर। अब नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम। हम फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, ग्राफ। सो लेस देन -3 ग्रेटर देन -3, लिमिट कहां से है? -6 to 0। तो ब्रेक कहां पे हुई? -3 पे। सो एक लिमिट ब्रेक हुई -6 to -3 और दूसरी कहां हुई? -3 to 0। क्लियर?
सो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज दिस इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, y इज इक्वल टू इसकी -x -3, सेकेंड y इज इक्वल टू x +3। क्लियर, ड्रॉ दिस, इनको ड्रॉ कर लेते हैं, x y x की वैल्यू 0, y की -3। क्लियर, x की वैल्यू यहां पे प्लस -3 कर देते हैं, x की वैल्यू -3, तो y की क्या आ जाएगी 0, हेयर x की 0, y की 3, x की -3, y की 0। क्लियर, ड्रॉ है। सबसे पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, x की 0 है और y की कितनी है -3, ये पॉइंट यहां पे, फिर है x की -3, ठीक है, सॉरी ये x की 0 है और y की कितनी है -3, तो y की -3 कहां आती है -1 -2 -3, यानी ये वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पे। दूसरी वैल्यू कितनी है, x की -3, y की 0, यहां पे। तो ये जो लाइन बनेगी ये कुछ इस हिसाब से बनेगी, जो -3 यहां से क्रॉस करेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो सीधी बनेगी ऐसे, जो यहां से पास कर रही है। बट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, हमें रिस्ट्रिक्टेड है कि इसकी लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए -6, तो मैं यहां से -6 से यहां से लाइन ड्रॉ, परपेंडिकुलर या लाइन ड्रॉ कर लो जो यहां पे मिलता हो। नाउ सेकेंड, इसकी बात करें, ये कौन सी लाइन है, दिस इज, ये जो लाइन बनाई गई है ये कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल टू -x -3। नाउ ड्रॉ दिस वन, x की वैल्यू 0, y की 3, y की 3 कहां होगी 1 2 3, यहां पे x की वैल्यू -3, y की 0, तो ये पॉइंट यहां पे बना। इट मींस ये जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और ये कौन सी है, y इज इक्वल टू x +3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, जो x एक्सिस तक हमें बनाना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया 1 एंड दिस एरिया 2। क्लियर, इसको मैं नाम लिख लेता हूं, ये O है, A B C D। So required area is the area of these two triangles। ये रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा। अब हम यहां पे बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया बनाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ रीजन लिख लिया करो, दैट इज गुड। एरिया ऑफ रीजन BCDB प्लस एरिया ऑफ रीजन OABO। क्लियर, सो हमारे पास दोनों की लाइन की इक्वेशन है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होगा वो इस लाइन का होगा, यहां से लेके यहां तक जो एरिया होगा वो इस लाइन की। दीज आर टू परपेंडिकुलर्स, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके नीचे वाला जो एरिया होता है वो, जैसे हमने ये परपेंडिकुलर 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये पूरा जो एरिया होगा वो किसका होगा, इस लाइन का होगा। सो नाउ एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, -6 to -3 एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, -x -3 का dx प्लस -3 to 0, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, x +3 dx। ओके, इंटीग्रेट नाउ, -x² upon 2 -3x, -6 to -3 प्लस x² upon 2 plus 3x, -3 to 0।
क्लियर? नाउ a इज इक्वल टू पुट द वैल्यू, सबसे पहले यहां पुट करते हैं, तो -6 का स्क्वायर होता है 36, सो -36 अपॉन 2, -6 यहां पुट करेंगे, 6 3 80, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। सॉरी, अपर लिमिट पहले पुट होती है, ये लोअर लिमिट मैंने पहले लिख दी, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। सो -3 पुट करते हैं, तो ये इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/2, देन प्लस 9, ओके, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे भी नाउ -6 पुट करते हैं, सो -36 अपॉन 2 प्लस 18, ये फर्स्ट वाला हो गया। नाउ कम टू सेकंड, 0 पुट करेंगे, दोनों टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड -3 का स्क्वायर 9/2, -3 इंटू 3 माइनस, नाउ a इज इक्वल टू, ये आया 9/2, ये कैंसिल हुआ 80, ये 0, -0 अगेन -9/2, तो ये प्लस 9/2, so it will become 18/2 and the answer is 9 square years. So like this you can find out the solution. Pause the video to note down. Now come to problem 5. Find the area bounded by y is equal to sin x between x equal to 0 and x is equal to 2 pi. So this area we have to find out. So first of all we'll draw the graph. Graph बनाते हैं, देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। सिंपल है क्वेश्चन ये, x एक्सिस y एक्सिस, सो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई तक, ये है 2 पाई, क्लियर? यहां पे आ गया पाई, यहां पे आ गया π/2, और यहां पे आ गया 3π/2। अब साइन का जो ग्राफ होता है वो शुरू कहां से होता है, अगर 0 पुट करूंगा तो 0 से, ऐसे 90 पे क्या जाता है 1, और 3π/2 -1, देख यहां पे आया, इसके बाद ये डाउन आया, कहां तक, 180 तक, 180 तक ये ठीक चलेगा, फिर डाउन आए, ठीक, फिर 180 से 2 ऐसे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। सो इट इज सिमेट्रिकल, इट मींस ये जो एरिया होगा ये थोड़ा सा कम बना, ये ज्यादा बना, तो लाइक दिस, एक ही बात है। सो अगर हम इसका पॉजिटिव वाले का निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि एरिया नेवर बी नेगेटिव। सो ये है किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और हमें कहां से कहां तक, 0 to 2 pi here. So solution, given curve y is equal to sin x, first आ गया, then x is equal to 0, second, then x is equal to 2 pi, that is third। ये लाइन ऐसे, सो इनके बीच का एरिया, सो इसका निकालते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड देन विल मल्टीप्लाई विद 2, सो ये नीचे का एरिया पूरा आ जाएगा टिल दिस एक्स एक्सिस। सो रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू 0 टू लिमिट पाई, यहां तक y dx, इट इंप्लाइज y यानी कि sin x dx, सो इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज साइन का करेंगे क्या होती है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई, सॉरी ट्वाइस लिखना भूल गया, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि हम तो इसका निकाल रहे हैं, इसका भी निकालना है, तो ये सेम है, क्योंकि 0 से 180 डिग्री, 180 टू 360, तो जो ये ग्राफ का एरिया है दिस इज सेम। सो a इज इक्वल टू 2, पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, क्लियर?
a इज इक्वल टू 2, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1, सो -1 और माइनस ये हो गया +1, cos 0 1, so it will become 2 into 2, that is 4 square units. So like this you can find out the area of any trigonometric function. Clear? Pause the video to note down. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. It's very important. Find the area between the parabola y square is equal to 4ax and the line. So एक हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कौन सी, राइट हैंड पैराबोला, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. सो डायग्राम इज लाइक दिस. ठीक, इसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन पे होगा. सो दिस इज राइट हैंड पैराबोला, y square is equal to 4ax. Okay, this is x axis, this is y axis, y dash x dash. So given curve solution, ये जो given curve है, given curve y square is equal to 4ax represent, क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, राइट हैंड पैराबोला. क्लियर? राइट हैंड पैराबोला with vertex 0 0 and axis along x axis. So y square is equal to क्या, 4ax. This is first. Then second, y is equal to mx. This is second, and this is what, equation of line. क्योंकि x और y लीनियर में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये लाइन मिलेगी कहां पे. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, पुट y is equal to mx in equation first. तो पुट करते हैं, सो ये बन जाएगा, यहां पे पुट करता हूं m square x square 4ax. डोंट कट बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो कट नहीं करना है, इसको इधर लाते हैं, तो ये आ जाएगा m square x square minus 4ax is equal to 0. x कॉमन, m square x minus 4a is equal to 0. एक आ गया x is equal to 0, दूसरा आ गया x is equal to 4a upon m square. Now put in equation second. यहां पे पुट कर देते हैं, जब x 0 है तो y भी कितना होगा, 0. जब x 4a upon, तो y कितना होगा, 4a upon m square, तो x की वैल्यू है, मल्टीप्लाई m है, कैंसिल आउट हो गया, 4a upon m. So point of intersection 0 0 and 4a upon m square, 4a upon m. So this is your point of intersection. Now plot this point. एक 0 0 है, so it will come here. दूसरा both the terms are positive, 4a upon m square, 4a upon m. So वो कहीं, हम कहीं भी मान लेते हैं यहां पे 4a upon. So like this, ये लाइन कैसे जाएगी, इट्स ए गेम ऑफ इमेजिनेशन. सो ये पॉइंट बन गया क्या, 4a अपॉन m स्क्वेयर कॉमा 4a अपॉन m, 4a अपॉन m स्क्वेयर, 4a अपॉन m. ड्रॉ द परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एरिया. तो ये आ गया 4a अपॉन m स्क्वेयर, यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0, ये ऑलरेडी 0 0 है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व. कर्व ऊपर है, कर्व से लाइन की इक्वेशन माइनस कर दो, सो विल गेट दिस एरिया. क्यों, कर्व जो एरिया कवर करेगा वो यहां से पूरा करेगा, ऐसे लाइन जो करेगी वो इसके नीचे एक्स एक्सिस तक ये करेगी. तो अगर कर्व में से ये माइनस हो जाएगा तो दिस एरिया वी विल गेट. सो रिक्वायर्ड एरिया. नाउ
required area is equal to limit 0 to 4a upon m square y dx, equation of curve, minus y dx, equation of line. Clear? So now a is equal to 0 to 4a upon m square, इक्वेशन ऑफ कर्व. देखो यहां से वैल्यू निकालते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर 2 a की पावर 1/2 x की पावर 1/2. ये पूरा कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा. सो मैं यहां लिख लेता हूं क्या, 2a की पावर 1/2 और अंदर x की पावर 1/2 dx, या माइनस कर लो, माइनस लाइन की इक्वेशन mx dx. क्लियर? सो ये इसके साथ था, तो सॉरी ये अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म थी ये सिर्फ इस पहले वाले के साथ है, दूसरे वाले के साथ नहीं है. ठीक है, तो अलग अलग ही लिख लेते हैं, ये dx और माइनस ये dx. ठीक है, तो लिमिट dx माइनस m बाहर इसका, और अंदर क्या रह गया x. लिमिट कहां से, 0 टू 4a m स्क्वेयर dx इज इक्वल टू. अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेट 2a 1/2, x का करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 टू 4a m स्क्वेयर, माइनस m बाहर, x स्क्वेयर अपॉन 2 बाहर, 0 टू 4a m स्क्वेयर. क्लियर? नाउ ये ऊपर आया तो ये बना 4 अपॉन 3a की पावर 1/2. अपर लिमिट यूज की तो 4 को तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, नीचे है m का स्क्वायर, पावर 3/2 इंटू a रह गया a की पावर 3/2. यानी सबको अलग अलग लिख लिया, तो जो कैंसिल हो सकता था उसको हमने कैंसिल कर दिया. माइनस लोअर लिमिट होता है, इट इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस m/2. अपर लिमिट पुट करेंगे 16a का स्क्वायर अपॉन m की पावर 4. माइनस लोअर लिमिट तो वो 0 है, नो नीड टू पुट. ये 2 8 16, m से कैंसिल हो गया, क्यूब बचा. ओके, नाउ 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32 अपॉन 3, ये m का क्यूब. a 1/2 a 3/2, बेस सेम, टेक एलसीएम, तो ये बन जाएगा a 4/2, तो बना a का स्क्वायर, माइनस 8a का स्क्वायर m का क्यूब. इट इंप्लाइज, कॉमन ले लो, 8a का स्क्वायर m क्यूब इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट हियर, 8 कॉमन आ गया, 8 4 जा 32, नीचे 3 कॉमन, मतलब कॉमन नहीं था, ये बच गया, माइनस 1. सो इट इंप्लाइज 4 minus 3 1, so 8/3 a square upon m cube square unit is the solution of this question. So it is very important question because it matters only calculations. These all questions is just a calculation and your imagination how to draw the diagram. Pause the video to note down. So now come to problem 7. Find the area enclosed by the parabola, and this is the parabola of upward parabola क्योंकि x square है और equal to y है, and the line this. So सबसे पहले given curve 4y is equal to 3x square represent कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला.
अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, विद वर्टेक्स किस पे, 0 0 पे, एंड एक्सेस अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। सो 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, दिस इज सेकेंड। सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। सो फर्स्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं ढूंढता हूं तो हमारे पास क्या मिलेंगे, सबसे पहले यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, यहां पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट करते हैं यहां पे 3x प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू 3x का स्क्वेयर, 6x प्लस 24, 3x का स्क्वेयर, 3 कॉमन आया, 2 3 8 24, ओके। सो ये रह गया 2x प्लस 8 इक्वल टू x का स्क्वेयर, विच इंप्लाइज x स्क्वेयर minus 2x minus 8 is equal to 0. Find out the factors using middle term spread. Multiply करके -8 plus minus करके -2. So simple. X square minus 4x plus 2x minus 8 equal to 0. X common, x minus 4 plus 2 common, x minus 4 equal to 0. एक आ गया x is equal to 4, दूसरा आ गया x is equal to -2. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट ढूंढने हैं। सो x इज इक्वल टू 4 यहां पे पुट करते हैं, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 4 3 12, 12 प्लस 12 24 डिवाइड बाय 2 12, हियर y इज इक्वल टू -2 है, 3 इंटू -2 -6, 12 माइनस 6 कितना हुआ 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। सो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो आए हैं वो आए हैं 4 12 -2 क्लियर, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। सो अपवर्ड पैराबोला है, तो बना दिया x एक्सिस y डैश, y एक्सिस, ठीक है, x डैश। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉरी पैराबोला जो भी है कर्व। नाउ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x4 है, सबसे पहले तो यहां देखते हैं x -2 है, मान लेते हैं यहां -2 है, ठीक है, और y कितना है 3, सो हियर समवेयर। फिर x4 है, थोड़ा सा और कम मान लेते हैं क्योंकि ये 12 आ रहा है, y यहां पे मान लेते हैं, यहां पे 3 मान लेते हैं, और फिर x का 4 मान लेते हैं यहां पे, और y का 12, सो वी कैन थिंक समवेयर एल्स। सो ये 4 12, ओके, और यहां पे ये आ गया हमारे पास -2 3। नाउ ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो दिस इक्वेशन इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कितना है 4, यहां पे x की वैल्यू कितनी है 4, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो द x वैल्यू इज -2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। देन हाउ टू फाइंड आउट द एरिया, -2 से लेके 4 तक का एरिया फाइंड आउट करना है। सो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ कर्व फ्रॉम एरिया ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन से
अगर मैं या एरिया ऑफ दिस, ये जो फिगर बनेगी इसमें से कर्व को माइनस कर देता हूं, देन इट इज सो सिंपल, वी विल गेट दिस एरिया. ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट -2 से 4 y dx. ऊपर है इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस y dx इक्वेशन ऑफ कर्व. क्लियर? सो लाइन में से कर्व को माइनस कर दिया, सो एरिया इज इक्वल टू -2 to 4. अब इक्वेशन ऑफ लाइन y की वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 बाहर, 3x + 12 dx -2 to 4. इक्वेशन ऑफ कर्व y की वैल्यू 3/4 बाहर, x² dx. क्लियर? सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 3x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 12x लिमिट -2 to 4 -3/4 x³ अपॉन 3 -2 to 4. ये कैंसिल आउट हो गया. सो अब एरिया इज इक्वल टू, देखते हैं, 1/2 4 पुट करेंगे, सो 3 into 16 अपॉन 2. 4 पुट करेंगे, 12 4 जा 48. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2, तो 3 into 4 अपॉन 2. हेयर -24, देन माइनस, ये एक 4 बाहर है ही है, यहां पे 4 का क्यूब -2 का क्यूब, दैट इज कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब होता है -8 -8 और ये -+8. क्लियर? और ये क्या है, 4 का क्यूब ऑलरेडी है ही. 8 2, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ. 8 3 जा 24 प्लस 48 माइनस 3 2 जा 6 -24 -18, तो ये बन गया +18. बंद हो गया ब्रैकेट. यहां से 4 कॉमन लेते हैं, नीचे 4 है, कैंसिल आउट होता, अंदर रह गया 4 4 जा 16 प्लस 2. क्लियर? इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर. यहां पे लिख रहा हूं a इज इक्वल टू हाफ. देखो 48 प्लस 24 कितना हो गया हमारे पास, 58 68 72 72 और 18 80 90 90 डिवाइड बाय 2 यानी ये 90 माइनस 18, so that is 45. So area is equal to 45 minus 18, 27 square units. So this is your what? This is your solution. Very interesting question. Pause the video to note down. You have to solve all these questions, and if you face any kind of difficulties, then you can write in the comment box, and you can send me the SMS also on number, WhatsApp number 9571303990. And those who are new to the channel, just subscribe the channel, press the like button, press the bell icon, and share this video to those who are in the need of these questions. Till that, Jai Hind.